Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg and today we are going to discuss bar graph in analytical paragraph. So as you all know that CBSE has added a new topic to class 10 English writing skills, and that is analytical paragraph. And in my previous lecture we had discussed line graph and the vocabulary related to it and how to go about a line graph. So if you haven't watched that video, then I'll give the link of that video in the description box. So today, as I have told you, that we are going to discuss bar graph. So what is the structure? The structure of a line graph or a bar graph is somewhat similar. First of all, we write introduction. Introduction means we just paraphrase the question. We just restate what is given in the question in our own words, and then we give an overview. Overview means overall trend of that particular graph, what that graph denotes, what that graph tells us. So we just give an overview, means whether there is an increasing trend or decreasing trend. So that's on an overview. And in the next paragraph, we divide two paragraphs on some on the basis of some criteria. Okay, so it can be the criteria based on two countries. It can be criteria based on time. It can be criteria based on increase or decrease. So there are certain criteria. On that basis we divide two paragraphs. So first there are two paragraphs, first body paragraph and second body paragraph. So here is some vocab related to, you can say, this particular bar graph. So there are some verbs to describe ascent or increase, like rise, jump, grow, climb, go up, increase, soar. So you can see in the upper left corner, and in the lower left corner you can see verbs to describe the decrease. We can say fall, drop, decline, decrease, go down, plunge, plummet. So all these verbs show decrease. Soar means you can say a rapid increase, or similarly plunge and plummet mean you can say rapid decrease. So then there are some adverbs to describe how these lines indicate that if there is only a slight increase, you can say slightly or slowly. Then if increase is more than a slight, then we can say steadily, gradually, or moderately. So as you can see that as the degree of increase or decrease keeps increasing, we keep changing the adverbs. जैसा हमने देखा कि स्टेडीली और ग्रेजुअली के बाद अगर थोड़ा सा और इंक्रीज है तो हम उसमें यूज कर रहे हैं कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली और सब्सटेंशियली, और उससे भी ज़्यादा अगर इंक्रीज है, जैसे कि ये लाइन इंडिकेट कर रही है, तो हम यूज करेंगे शार्पली, क्विकली, रैपिडली एंड स्टीपली. और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लोअर राइट कॉर्नर में हाउ टू डिस्क्राइब, जो अगर कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता है, अगर स्टेबल रहती है, ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि स्टे कांस्टेंट, स्टे स्टडी, स्टे स्टेबल, और रिमेन कांस्टेंट, रिमेन स्टडी और रिमेन स्टेबल. सो दीज आर सम वोकैब वर्ड्स एंड विल डिस्कस सम मोर वोकैब वर्ड्स आफ्टर दैट. अब यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे वर्ब के साथ एडवर्ब्स लगाए गए हैं. जैसे सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो आई वांट टू टेल यू दैट द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट टेंस मोर ऑफन देन नॉट. तो सेल्स फेल स्लाइटली, जो सेल्स है वो गिरी है हल्की सी. उसके बाद प्राइसेस ड्रॉप्ड शार्पली, प्राइसेस जो एकदम से गिरे हैं. प्रोडक्शन रोज स्टेडीली, प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे, मतलब जैसे एक स्टडी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो कम नहीं हुआ है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है. द परसेंटेज ऑफ एक्स डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, एक्स की जो परसेंटेज है वो कम हुई है काफ़ी हद तक, सिग्निफिकेंटली कम हुई है. द नंबर ऑफ एक्स इंक्रीज ड्रामेटिकली, और एक्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हुआ है ड्रामेटिकली. तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर को इस तरीके से ये वोकैब हम यूज़ करते हैं. वर्ब के साथ हमें एडवर्ब लगाना पड़ता है. और देखिए, अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव के साथ नाउन यूज होता है. तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, देयर प्लस बी प्लस ए, इसी स्ट्रक्चर के साथ ये सेंटेंसेस यहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो ये जो वर्ड्स है राइज, फॉल, ड्रॉप और डिक्लाइन, ये यहाँ पे नाउन बन के आए हैं, ये यहाँ पे वर्ब्स नहीं है, और इनसे जस्ट पहले एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं. तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि सेल्स में हल्का सा इंक्रीज था, तो देर इज अ स्लाइट राइज इन सेल्स. ओके, देर इज अ स्लाइट राइज इन सेल्स. या फिर मैं ये कहूँगा कि सेल्स रोज स्लाइटली. अगर मैं इन्हें एडवर्ब या वर्ब बना के यूज करता हूँ तो इसी सेंटेंस को इस तरीके से कहूँगा. नेक्स्ट, देयर वाज अ ग्रेजुअल फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, ग्रेजुअल फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, या फिर द प्राइस ऑफ एक्स फेल ग्रेजुअली. आगे है, देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन द रेट, या फिर कह सकते हैं कि द रेट ड्रॉप ड्रामेटिकली. देयर विल बी अ स्टडी डिक्लाइन इन द नंबर.
तो द नंबर डिक्लाइन स्टेडीली। इसके मतलब इनके मतलब बता देता हूँ आपको कि जो सेल्स में है वो हल्की सी क्या हुआ, इंक्रीज हुई सेल्स। उसके बाद देयर वाज अ ग्रेजुअल फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, एक्स का प्राइस जो है वो हल्का सा गिरा। इसके बाद है रेट में जो है वो ड्रामेटिक ड्रॉप हुआ, रेट एकदम से गिर गया। और देयर विल बी स्टडी डिक्लाइन इन द नंबर, और इस नंबर में मतलब एक लगातार इसमें क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है कॉन्स्टेंट रेट से। क्लियर। तो वोकैब में नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं लिंकिंग वर्ड्स। तो लिंकिंग वर्ड्स आर प्रेटी मच नेसेसरी। देखिए लिंकिंग वर्ड्स के बिना आप जो है कोहेजन और कोहेरेंस जिसे बोलते हैं एक राइटिंग स्किल्स के अंदर, वो नज़र नहीं आता। तो देखिए अगर हमें हमें सेंटेंसेस को या दो फ्रेजेस को, वर्ड्स को हमें ऐड करना हो, तो इसके लिए जो ऐड करने वाले वर्ड्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं कि एंड, ऑल्सो, एज वेल एज, मोर ओवर। अगर हम उसी से मिलती जुलती कोई और बात कहना चाहते हैं, देन टू, फर्दर मोर, एडिशनली, मतलब ये ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। सीक्वेंसिंग के लिए क्या यूज़ होते हैं, मान लीजिए हम दो तीन बातें डिस्कस करने वाले हैं, तो हम एक सीक्वेंस तो बनाएंगे कि पहले ये बाद में ये, तो उसके लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बोल सकते हैं। फाइनली, नेक्स्ट, मीनवाइल, आफ्टर, देन, सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली का मतलब उसके बाद। तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं। इलस्ट्रेटिंग मतलब एग्जाम्पल हमें देना हो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, सच एज, फॉर इंस्टेंस, in the case of, as revealed by, illustrated by. So these are some of the words and phrases. cause and effect दिखाना हो आपको, तो because, so, therefore, as a result, thus, consequently, hence, etc. तो देखिए अगर कंपैरिजन करना हो तो जो वर्ड्स हैं, सिमिलरली, लाइकवाइज, एज विद, लाइक, इक्वली, इन द सेम वे। तो अगर हमें दो चीज़ों में कंपैरिजन करना हो तो इन हम वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। क्वालिफाइंग के लिए देखिए कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि एक डिफरेंट आइडिया, एक ऑपोजिट व्यू देना पड़ता है। बट, हाउएवर, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑल्दो, यद्यपि जिसे कहते हैं। अनलेस का मतलब जब तक, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, एज लॉन्ग एज, इफ। तो ये सब क्वालिफाइंग वर्ड्स है। उसका कॉन्ट्रास्ट कभी दिखाना हो, मतलब एक तरफ तो कुछ सिचुएशन है, दूसरी तरफ उससे थोड़ा सा हटके हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेयर एज, इंस्टेड ऑफ, ऑल्टरनेटिवली, अदरवाइज, अनलाइक, ऑन द अदर हैंड, कन्वर्सली। तो इस तरीके से कॉन्ट्रास्ट होता है। और अगर एम्फेसाइज करना हो, किसी बात पे जोर डालना हो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे फीचर है, तो आप कहेंगे अबव ऑल, इन पर्टिकुलर, स्पेशली, सिग्निफिकेंटली, इंडीड, नोटेबली। नोटेबली इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। तो ये इस तरह के वर्ड्स आप एम्फेसाइजिंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर। सो अब देखिए हमें एक जो है बार ग्राफ दिया हुआ है, एंड द चार्ट बिलो शोज एट द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज ऑन कंज्यूमर गुड्स इन 2010 इन पाउंड स्टर्लिंग। तो देखिए टू कंट्रीज की बात हो रही है, फ्रांस और यूके की। और जो ये चार्ट है हमें क्या दिखा रहा है कि इन कंट्रीज़ में 2010 के अंदर कंज्यूमर गुड्स पे 5 कंज्यूमर गुड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उन पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। तो देखिए जो रेड कलर है वो शो कर रहा है यूके को, यानी कि ब्रिटेन को, और जो ब्लू कलर है वो फ्रांस को डिनोट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे आपको जो है अलग अलग कंज्यूमर गुड्स दिए हुए हैं, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम, कैमराज। और वाई एक्सिस पे आपको दिए हुए हैं इन पे एक्सपेंडिचर पाउंड स्टर्लिंग के अंदर। तो ये आपका ग्राफ है। पहले चलो इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहला पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होता है उसी को हम अपने वर्ड्स में रिफ्रेज करते हैं। तो देखिए ये जो चार्ट है ये क्या दिखाता है कि दिस चार्ट इलस्ट्रेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ टू कंट्रीज, फ्रांस एंड यूके। यू कैन से दिस चार्ट इलस्ट्रेट्स द एक्सपेंडिचर ऑफ फ्रांस एंड यूके ऑन 5 कंज्यूमर गुड्स इन 2010। 5 कंज्यूमर गुड्स मीन्स वी कैन मेंशन द नेम्स ऑफ दोज कंज्यूमर गुड्स। और उसके बाद जो है वी कैन से दैट द एक्सपेंडिचर इज मेजर्ड इन पाउंड स्टर्लिंग। जो यूनिट है मेजरमेंट की वो पाउंड स्टर्लिंग है। तो देखिए हमारा ओपनिंग जो पैराग्राफ रहेगा इंट्रोडक्शन का वो किस तरीके से रहेगा कि द चार्ट इलस्ट्रेट्स द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन 5 कंज्यूमर गुड्स, और उन गुड्स के नेम्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कार्स, कंप्यूटर्स, बुक्स, परफ्यूम एंड कैमराज, इन फ्रांस एंड द यूके इन 2010। यूनिट्स आर मेजर्ड इन पाउंड स्टर्लिंग। तो देखिए यहाँ पे कोई भी डिटेल हमने नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ एक हमने इंट्रोड्यूस किया है हमारे इस बार ग्राफ को कि ये किस बारे में है। तो वही लगभग हमने बातें यहाँ पे कह दी है। शोज की जगह हमने इलस्ट्रेट्स कह दिया है। उसके बाद हमने वहाँ कंट्रीज़ के नेम नहीं थे तो हमने यहाँ कंट्रीज़ के नेम लिख दिए हैं, और कंज्यूमर गुड्स के भी नेम्स लिख दिए हैं। उसके बाद इसकी मेजरमेंट यूनिट भी बता दी है। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम ओवरऑल इसका व्यू देखें तो अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस कंट्री ने किया, अगर आप देख सकते हैं तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो है रेड का, यूके का। आप देखिए तो ओवरऑल में हम ये कह सकते हैं कि जो यूके है दैट स्पेंड्स द यूके स्पेंड्स मोस्ट मनी ऑन कंज्यूमर गुड्स, और यू कैन से मोर मनी ऑन कंज्यूमर गुड्स एज कम्पेयर टू फ्रांस।
और इसके बाद साथ में हम ये कह सकते हैं कि साथ ही मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि देखिए जो यूके का बार ग्राफ है तो सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो कार्स पे है। डैट मीन्स कि यूके का जो मैक्सिमम मनी स्पेंड हो रहा है वो कार्स पे हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो फ्रांस भी जो है मैक्सिमम मनी किस पे स्पेंड कर रहा है। फ्रांस का भी जो ये ब्लू आप कह सकते हो कि बार है ये सबसे ऊपर है कार्स पे ही। तो फ्रांस भी मैक्सिमम मनी जो स्पेंड कर रहा है कार्स पे कर रहा है। और अगर मैं मिनिमम की बात करूँ तो देखिए मिनिमम जो है फ्रांस जो मनी स्पेंड कर रहा है वो कर रहा है कैमराज पे। आप देखिएगा कैमराज के ऊपर जो बार बना हुआ है वो फ्रांस का ब्लू वो सबसे आप उसकी हाइट सबसे कम है कंपैरेटिवली। और जो यूके है वो सबसे कम मनी स्पेंड कर रहा है परफ्यूम पे। तो परफ्यूम पे देखिएगा कि यूके का जो रेड बार है वो उसकी हाइट सबसे कम है। तो इन दोनों में हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम मनी दोनों ही कंट्रीज कार्स पे स्पेंड कर रहे हैं। और जो यूके है वो मैक्सिमम सबसे कम मनी स्पेंड कर रहा है परफ्यूम पे, और फ्रांस जो सबसे कम मनी स्पेंड कर रहा है कैमराज पे। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो है वेरिएशन है मनी स्पेंड के मामले में वो है कैमराज पे। अगर हम देखें तो यूके तो काफ़ी अमाउंट स्पेंड कर रहा है कैमराज पे, और कंपैरेटिवली फ्रांस जो है वो उससे काफ़ी कम अमाउंट स्पेंड कर रहा है। तो ये भी बात इसमें लिखी जा सकती है। तो लेट्स सी कि हम इसका ओवरव्यू जो है पैराग्राफ सेकंड वो कैसे बनाएंगे। So let's see how we'll form this second paragraph. Overall, the UK spent more money on consumer goods than France in the period given. Both the British and the French spent most of their money on cars, whereas the least amount of money was spent on perfume in the UK compared to cameras in France. Furthermore, the most significant difference in expenditure between the two countries was on cameras. तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो यूके ने मनी स्पेंड किया कंज्यूमर गुड्स पे फ्रांस के कंपैरिजन में इस पीरियड में 2010 में। और जो ब्रिटिश और फ्रेंच जो है इन्होंने मैक्सिमम जो अपना मोस्ट जो मनी स्पेंड किया वो कार्स पे है, और लिस्ट अमाउंट ऑफ मनी जो है यूके ने परफ्यूम पे किया है और फ्रांस ने कैमराज पे किया है। फर्दर मोर जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंकर वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। फर्दर मोर का मतलब कि इसके अलावा जो हम अगर और बात करें जैसे ये ऐड करने के लिए यूज़ किया गया है कि जो दोनों कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया एक्सपेंडिचर पैटर्न में वो था कैमराज पे। देखिए बॉडी पैराग्राफ्स की अगर हम बात करें तो हमें किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्हें डिवाइड करना पड़ता है। तो हम या तो कर सकते हैं कि फ्रांस और यूके का अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं, टू डिफरेंट पैराग्राफ्स बना सकते हैं, एक फ्रांस का और एक यूके का, बट उसमें थोड़ा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। या फिर हम कोई टाइम पीरियड 2010 ही दिया हुआ तो उस बेसिस पे हम नहीं कर सकते। या फिर हम ये देख सकते हैं कि किन गुड्स पे फ्रांस ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहा है और किन गुड्स पे यूके ज़्यादा अमाउंट स्पेंड कर रहा है। तो इसके बेसिस पे हम दोनों को टू पैराग्राफ्स बना सकते हैं और इस तरह से कंपैरिजन भी पॉसिबल हो पाएगी। तो अगर आप ये देखें कि कौन से किस कंज्यूमर गुड्स पे जो है, अगर हम बात करें कि रेड जो बार है वो उसकी हाइट ज़्यादा है ब्लू के कंपैरिजन में, तो रेड ज़्यादा है कार्स पे, बुक्स पे एंड कैमराज पे, और ब्लू की जो हाइट ज़्यादा है वो है कंप्यूटर्स पे और परफ्यूम पे। अगर हम बात करें कंपैरेटिवली आपस में तो रेड जो बार है वो ब्लू से उसकी हाइट ज़्यादा है कार्स पे, बुक्स पे और कैमराज पे, और ब्लू बार की हाइट ज़्यादा है कंप्यूटर्स पे और परफ्यूम पे। सो इस बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, टू पैराग्राफ्स बना सकते हैं। एक में हम ये दिखा सकते हैं कि किन गुड्स पे यूके ने ज़्यादा स्पेंड किया, और किस दूसरे पैराग्राफ में ये दिखा सकते हैं कि किन गुड्स पे फ्रांस ने ज़्यादा स्पेंड किया। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें डाटा भी देना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ता है। जब हम बॉडी पैराग्राफ्स की बात करते हैं तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि अमाउंट भी हम मेंशन करेंगे कि कितना ज़्यादा कितना कम, तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करते हैं जो हम ओवरव्यू में मेंशन नहीं करते। तो देखिए फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ इसका कैसे बनेगा कि इन टर्म्स ऑफ कार्स people in the UK spent about 4,50,000 pounds sterling on this as opposed to the French at 4 lakh pounds sterling। तो कार्स में देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो यूके ने 4,50,000 पाउंड्स स्पेंड किए हैं, और जबकि कंपैरेटिवली जो है फ्रांस ने 4 लाख पाउंड स्टर्लिंग इस पे स्पेंड किए हैं। और ब्रिटिश एक्सपेंडिचर जो है बुक्स पे भी हायर था फ्रेंच से, और वो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 4 लाख एंड 3 लाख पाउंड स्टर्लिंग। एंड इन द यूके एक्सपेंडिचर ऑन कैमराज जस्ट ओवर रुपीज़ 3,50,000। तो एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि अगर 3,50,000 से ऊपर थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो आप एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, आप इसे जस्ट ओवर, जस्ट अंडर इस तरह से कहेंगे, स्लाइटली ओवर, इस तरह के आप इसमें फ्रेजेस यूज करेंगे। तो इन द यूके एक्सपेंडिचर ऑन कैमरा जस्ट ओवर 3,50,000 पाउंड स्टर्लिंग was over double that of France, which was only 1,50,000 पाउंड स्टर्लिंग। तो जो फ्रांस का जो एक्सपेंडिचर था 1,50,000 था कैमराज पे, जबकि
यूके का था वो उससे डबल से भी ज़्यादा था, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन हो गई है। क्लियर। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बात करते हैं कि किन गुड्स पे जो है फ्रांस ने यूके से ज़्यादा स्पेंड किया है। वो है कंप्यूटर्स एंड परफ्यूम। और कितना कितना किया है कंप्यूटर्स पे, जैसा आप देख पा रहे हैं कि जस्ट अ लिटिल ओवर 3,50,000 जो है फ्रांस ने स्पेंड किया है, एंड 3,50,000 पाउंड स्टर्लिंग यूके ने स्पेंड किया है। और परफ्यूम पे जो है 2,50,000 स्पेंड किया है फ्रांस ने, और यूके ने जो है वो जस्ट अंडर, दिस इज जस्ट अंडर यू कैन से 1,50,000 पाउंड स्टर्लिंग। तो इसके बेसिस पे हम एक और पैराग्राफ बना सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड बॉडी पैराग्राफ। ऑन द अदर हैंड, तो देखिए एक कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, क्योंकि पहले कौन स्पेंड कर रहा था ज़्यादा, यूके स्पेंड कर रहा था, और अब इस पे फ्रांस ज़्यादा स्पेंड कर रहा है, तो इसलिए हमने ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ मनी पेड ऑन द रिमेनिंग गुड्स वॉज हायर इन फ्रांस। तो बाकी जो दो गुड्स बचे हैं कंप्यूटर्स एंड परफ्यूम, उन पे जो अमाउंट ऑफ मनी जो स्पेंड किया गया वो फ्रांस में उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा था। अबाउट 3,50,000 पाउंड स्टर्लिंग वॉज स्पेंट बाय द फ्रेंच ऑन कंप्यूटर्स विच वॉज स्लाइटली मोर देन द ब्रिटिश हु स्पेंट एग्जैक्टली 3,50,000 पाउंड स्टर्लिंग। तो देखिए स्लाइटली मोर ही था, कोई ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, तो वो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ। नीदर ऑफ द कंट्री स्पेंट मच ऑन परफ्यूम which accounted for 2 lakh pound sterling of expenditure in France but under 1,50,000 pound sterling in the UK। तो कहा गया है कि परफ्यूम पे किसी भी कंट्री ने बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं किया, जो कि फ्रांस ने तो स्पेंड किया आप कह सकते हैं कि 2 लाख पाउंड स्टर्लिंग, और यूके ने 1,50,000 पाउंड स्टर्लिंग इस पे स्पेंड किया। So thus we have analyzed this paragraph and written in this in the form of analytical paragraph, and this exercise is for you to do the practice of bar graph analytical paragraph. I hope that you like this video, and if you like this video then please share this and subscribe the channel. Thank you.